Good morning, sir. 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 Good morning, Good everybody. morning, Good sir. morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Morning, Good sir. Good morning, sir. morning, sir. Good morning, everybody. Asim Good sir, morning. Sir. Good morning, Good sir. morning, जी sir. सर. Good morning. please. नहीं अभी 11th। जी बोलिए सर, कौन सा बोल रहा था? अभी बैठे रहो। Morning, sir. मॉर्निंग. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Please, sir. you Good start. morning, sir. Thank you, Good sir. जी morning, मजहर sir. साहब बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? मजहर कुछ बोल रहे थे आप? मजहर कुछ बोल रहे थे क्या? Start करें sir. जी जी ठीक. Okay, participants, first of all of you are requested to please mute your microphone, please. So today we will be discussing with you how to live stream and how to record your video lecture in the standalone mode using OBS Studio. So today we'll be discussing this topic with you. On 10th of February, I was busy in some other way, so I have already told you that I couldn't engage that class. That I will take some later. That will be notified by Mr. Mazhar, and I will also notify you. So today I'll be discussing this topic, that is live streaming and video recording in the standalone mode using OBS Studio. I have already uploaded this file on your Google Classroom. So if you will see your Google Classroom, go over here. That presentation is already there. OBS Studio, live streaming and standalone recording using OBS. So this file has already been shared with you on your Google Classroom. So you can get it from there. So first of all, we would like to discuss with you that is what is live streaming and what do we mean by standalone recording. Live streaming means, say for example, you are organizing an international conference and you wish that the technical session or the inaugural session of this international conference be broadcasted in the live mode to the whole world, to the audience belonging to whole world simultaneously. Simultaneously means the moment the event is occurring, you want to broadcast it so that anybody who is in the other part of the world can see it live. That is the meaning of live streaming. So we can broadcast any event live using OBS. How we will see it later on. How we can do it, we can see it later on. Another kind of thing which we can do using OBS is the standalone recording. Here we will not live stream or we will not broadcast the lecture or the event, but we will record that event and later on we will edit it, make it more presentable. If something has gone wrong, we can change that thing, and once it is finalized, then we can send it to the audience. So a standalone recording means just like recording your video lecture. Once you record your video lecture, you edit it, make it more presentable, and then you share it with the audience. So both kind of recording, live streaming as well as a standalone recording, can be done using OBS Studio. So this is that how we can do all these things. So we will discuss in 1.5 hour session of today. As I have already told you that it is always better and advisable to use your laptop or desktop for these kind of technical works, because mobile phones have their own limitations. So for the novice people who are new, it will be difficult to use mobile phone for these kind of activities. So always preferable to use, or always advisable to use your laptop or desktop for this kind of recording and editing. So today we will be discussing the recording part, and in the next lecture, that is tomorrow, I'll be discussing how to edit it,
how to change it, how to modify it, how to make it more presentable. So in 2 parts, this recording and editing part will be completed. So today I'll be discussing the first part, that is the recording part. Participants, am I audible and clear what I am going to discuss with you today? You can respond by writing on the chat yes or no. The topic is clear? Okay, very good. So this is the agenda for today's discussion. First of all, we will see the introduction to OBS Studio. What kind of features OBS Studio provides for you, what kind of facilities it provides, which we can use in the teaching and learning process. After knowing the features, we will see how to create a scene, how to add sources, what are different kinds of controls over there. And then we will see a stepwise procedure for making video presentations. Video presentations means how we can record our video lecture in different scenarios, in different setups, I mean to say. These setups are normally called as scene in the parlance of, or in the terminology of OBS. These various kind of setups or settings or environments in which we record are simply known as scene. So we will see how we can record in different kind of setups. And then this is for offline recording or a standalone recording. And then we will see how we can stream live any event to the audience across the world using Facebook or using YouTube, because you want to broadcast it live to the audience of the whole world. So for that you need a platform which can be accessed or which is accessible from all part of the world. And one such platform is Facebook. Another such platform is YouTube. So what we will do basically, we will take the feed through OBS, or I mean to say we will connect our OBS. We will connect our camera and everything to the OBS, and we will send the feed to Facebook or to the YouTube, so that the people across the world can see the event live. So that is the thing which we will be discussing with you in the next 1.5 hours. So first of all, you see from where we can download this software. So this software is freely available. OBS means, the full form of OBS is basically Open Broadcaster Software Studio. So this is a multi-platform free open source software that can be used both for live streaming. It can be used for live streaming, means broadcasting live, and for offline video recording as well. The first question is that from where we can get it. So you see here, I am just going to the Google and go to Google, simply write down OBS Studio. That's all. So you can see here OBS Studio download is there. The first thing which you will see on your screen, first thing which you will see on your screen is download OBS Studio. Can you see over here? You can respond me by writing yes or no on the Google Meet chat or using Google Meet chat. So the screen is visible to you. Download OBS Studio. So simply click the download option from here, and you can see here 3 icons are there. So those who are using Windows, they can use this icon. Those who are using Apple Mac, they can use this icon. Those who are using Ubuntu or Linux, they can use this icon. So 3 versions are there. For Windows version, so those participants who are using Windows operating system, they can download it from here. Those who are using Apple Mac or Mac, they can use from this icon. They can download the software. And those who are using Windows version, they can download from here. Here it is already written, the window release of OBS Studio support Windows 10 and 11. So please be careful that if your Windows version is 10 and 11, then this version will be supported. For older version, you can download it from the net as well, no issue. So simply go to download, and you can download it from anywhere. You see here, OBS Studio for Windows version, for Mac, for Linux. If you are using Windows, simply click this
icon, and you see here the file is being downloaded. एक मिनट Okay, participant. So I was discussing with you that from where we can download it. So have you seen that is this file is there in the download? Go to your download and see here. In the download section, you see here OBS Studio. You see here OBS Studio 3.00 full stack is downloaded. Can you see over here? You can respond by writing yes or no in the chat. And you see here this file is already downloaded over here. This file I mean to say. Okay. So simply how now it is downloaded. Now how to install it? For installing this software, simply double click over here. Double click over here. A screen will appear and then you see yes, and the file will be installed within 2 minutes time. I have already that version over here, so I am not installing it. Whenever it will be installed, you can see this icon on your desktop. The moment it will be installed, you see here this icon, you can see black color wheel over here, OBS Studio. So this icon will appear on your desktop. Once it appears, means your software has been successfully downloaded and installed on your computer. Now, before I come to that, how to record the video lecture and how to live stream any event, first of all, we should know how we can use OBS Studio for teaching and learning purpose. I mean to say, I would like to enumerate few examples where we might use or where we may use OBS Studio for teaching and learning purpose. कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? So देखिए, there are some scenarios are there. This presentation I have already shared with you. So don't be afraid and don't be panic. That is already there in your Google Classroom. You can download it from there. I can consult it. Whatever I am going to teach you, what I am going to tell you, each and everything is written in this presentation. Later on, you can refer it if you have any problem. So I am going to discuss you what are the scenarios where I can use this OBS Studio for teaching and learning purpose. So scenario number one is there. You see, say for example, you want to record your lecture where you want to be visible to the audience with your audio and video only. I mean to say that this kind of thing is there. You want to record this kind of thing where you are giving a lecture, your student can see you as well as they can listen your voice. So this is known as, this is one setting I mean to say. And this setting or this environment in the parlance of OBS is known as scene. So I mean to say this is scene number one. Next is that, okay. So before I go into that, okay, let us see. Another thing is that second option may be, or second possible application may be that, say for example, you want to record your lecture where you are not visible to your audience, but your PPT is visible to the audience and your voice, the student can listen to your voice. So this kind of thing I mean to say, this kind of scene. The student can see your PPT, you are explaining the PPT, and your student can listen your voice. So this is another, I mean to say, scene. This is another thing. In this scene, you are not visible. Your voice is audible and the student can see your presentation. Another possible application is that, say for example, you want to record your lecture where I am not visible to the audience, but my browser window is visible, supported by my voice. Sometimes it may happen that I want to explain something from net. So say for example, I want to show some student, I want to demonstrate some student using my Google browser. So the student can see what is happening in their browser over here. And whatever explanation you are giving, that student can listen. So this is another kind of a situation, another kind of scene is there. So say for example, this kind of situation is there. I am discussing something with you
using Google. So you can see over here how does human heart work. Say for example, I want to see this thing and I want to discuss with the student this thing. So I see here. So I mean to say this is there which we can explain to the student. So the student can see this thing, or this will be recorded along with your voice. Are you getting the point or not? Okay. So now come to next part. So these are some of the possible applications where we can use OBS Studio. Another thing that, say for example, you want to record your lecture where you are visible to the audience as well as your PPT is visible to the audience. Okay. In another case, in this case, what was that? Only PPT was visible, you were not visible. But say for example, you want to record your lecture in this way. Your PPT is visible as well as in some corner, you as a teacher will also be visible over here. This can be done also. So here the student can see you, they can listen you, how you are explaining the things, and all the PPTs are being displayed over here. So these are some of examples. Another thing is that, another possible application is that to live stream a lecture or inaugural session or technical session of a conference to the global audience using YouTube live. So if you want to broadcast any event live, you can do it using OBS as well. So these are, say for example, you have invited a Nobel laureate scientist is there and he's giving a lecture and you want to broadcast this lecture live to the whole audience across the world. You can do it using Facebook or using YouTube live. So these are few examples where OBS can be used, or few application I mean to say where OBS can be used for teaching and learning purpose. Please tell me, dear participants, up to this point, is it clear to all of you what is OBS and how we can use OBS, where we can use OBS Studio for teaching and learning purpose? Fine. So now I'm talking about scene. Now it is clear what is scene. This is one scene, I mean to say. This is another scene. But what is different from this, sir? Here, my name, how the teacher's name is not there, if you can see. In this scene, along with the video, you can see Dr. Asim Zafar is written over here. Okay, fine. So this is example of another scene. What is happening in this scene? This scene is different from that. Here, the teacher is not visible. Instead, the PPT is visible over here. What is happening over here? Neither the PPT nor the teacher is visible. Here, the browser window, whatever he is browsing in the internet, that is visible to the audience, and his explanation is audible to the audience or the students. In this scene, the PPT is also visible to the audience, as well as the teacher is also visible in a video in any corner of the PPT. So these are known as different scenes in the parlance of OBS Studio. Acha, one thing is that a scene is made up of certain resources or sources, I mean to say certain sources. एक सीन को क्रिएट करने के लिए कुछ चीजें आपको चाहिए, उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं. सो हाउ टू क्रिएट दिस सीन? इस सीन को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? हमें सिर्फ वेबकैम चाहिए. ओनली वेबकैम इज रिक्वायर्ड. ओनली वेबकैम इज रिक्वायर्ड. Only webcam is required over here. Mazhar, are you there? Mazhar, can you listen to me? Mazhar, are you there? Mazhar, can you listen to me? Okay. Audience, please confirm. Am I audible to all of you? Please, you can write down your chat box. Am I audible? Okay, fine. So this scene is made up of only webcam. इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको webcam चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होगा. इसको बनाने के लिए webcam is enough. So using your webcam, your video and audio as can be recorded. Now come to this scene. What are the sources required to create this scene? You can write down on your chat box. Webcam से तो हो जाएगा, लेकिन नाम कहां से लिखा हुआ आएगा? This is an image file basically. This is an image. So we have already pasted that image name file over here. So two sources will be required in this case. Number one, webcam, which is recording your video and audio. Another thing is that, which is
the image file, your name file, this image. What is this video is made up? This scene is made up of what? This scene is made up of what? Only kya? Your PPT. है ना? So PPT is there. Of course, your microphone is always there, which is recording your voice. So for creating this scene, we need your PPT only. What is this? To create this scene, what is required? Only the browser is required. To create this scene, what is required? PPT as well as webcam. Here two things are required: PPT as well as webcam is required. So I hope you might have got it. What is scene and what is sources? So a scene is always made up of certain sources, maybe one source, maybe more than one source. Here in this case, it is made up of one source only, that is webcam. Here it is made up of two sources, that is webcam and image file, that is Asim Zafar. Another thing is that this source is made up of only PPT. This is made up of only Google browser, I mean to say your browser window. This is made up of two things, PPT as well as your webcam. Now come to how to create a scene. जी सर। आपने सबको म्यूट कर दिया क्या? नहीं म्यूट आप छोड़ दीजिए, म्यूट हटा दीजिए, हम लोग करवा दें, ठीक है ना, उससे इंटरेक्शन। ठीक है। All the participants are requested to please mute yourself. Please check your microphone is muted. Please check. And whenever required, you can unmute, you speak, and then you can mute. Fine. So now come to this part. How to create a scene. Fine. So the stepwise procedure has already been written over here. When you have any kind of problem, you can refer this presentation which I have already shared with you. Now I am going to discuss with you creating a scene. कमलेश जी, हाँ ठीक है, कमलेश जी म्यूट कर लीजिए, कमलेश जी म्यूट कर लीजिए अपने आप, हाँ ठीक. So okay, now I am going to show you how to create a scene using OBS. Now you can respond using your microphone as well, but after speaking, please make sure that your microphone is muted. So first of all, you see here this OBS Studio is there. Now I am going to see you how to launch this OBS Studio and how to work using OBS Studio. So double click it, the OBS Studio interface will open. This is the interface of OBS Studio. Can you see here? Can you see here? Yes, Yes, sir. yes, Okay. yes, sir. Yes, sir. After speaking, make sure that you mute yourself. Otherwise, communication will not be good. Okay. So Yes, this sir. is the thing. Just like any software, what happens? यहाँ भी there are certain menu items. आप हैं देखिए, यहाँ पर certain menu items are there. है ना? You can see here, file, edit, view. Just like Word में होता है या PPT में होता है. Just like any other software, we have the menu options over here. Menu is there. Apart from that, you can see this black screen. This is known as preview. Whatever you are doing, whatever you are recording, and what is recorded, that is being displayed over here. यहाँ पर जो भी चीज रिकॉर्ड हो रही है, ये ब्लैक स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे. ये देख पा रहे हैं सर, ये वाला ब्लैक स्क्रीन आपको मैं भी दिखाता हूँ. जी सर, बिल्कुल सर, दिख रहा है। जी सर, Yes, दिख sir. रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. Yes, sir. Okay, okay, sir.
Please confirm, can you see the OBS studio over here? OBS screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है सर, अब देखिएगा सर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रीव्यू है सर। यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिखेंगी वो सर रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पर जो भी चीजें दिख रही हैं ये सब रिकॉर्ड होंगी सर, ये वाली पोर्शन। तो ये मेन्यू आइटम था, मैंने आपसे बताया, ये सारी चीजें हैं। अब उसके नीचे सर देखिएगा यहाँ पर कुछ पैन्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीन पैन। जैसे ये देख पा रहे हैं सर, अगर नीचे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे देखिएगा सर, दिस थिंग इफ यू कैन सी, देख पा रहे हैं सर, ये नेम टैग प्लस आसिम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट सीन्स हैं सर। यस सर, दिस इज द नेम ऑफ वेरियस सीन्स। उसी के बगल में सर एक करस्पॉन्डिंग टू सीन देयर आर सर्टेन सोर्सेज। देखिए करस्पॉन्डिंग टू दिस सीन, इसको सीन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सर, एक वेबकैम चाहिए और ये एक नेम वाला फाइल चाहिए, ऐसा नेम टैग चाहिए। तो देखिए सर यहाँ लिखा हुआ है नेम टैग है प्लस वेबकैम है। सो करस्पॉन्डिंग टू एवरी सीन देयर आर सर्टेन सोर्सेज। देखिए सर यहाँ वाला, इसमें सिर्फ इस सीन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा सोर्स चाहिए सर, वेब कैम चाहिए। देख रहे हैं सर, ठीक है। तो ये दूसरा वाला है सोर्स है। तीसरा यहाँ पर ऑडियो मिक्सर है सर, ये ऑटोमेटिक होता है। अगर आपके पास अलग से कोई माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग योर वेबकैम इट विल ऑटोमेटिकली बी डिटेक्टेड। यहाँ पर सीन ट्रांजिशन के लिए सर कि एक सीन से अगर दूसरे सीन में आप जाना चाहते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजिशन यू वांट टू यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन हैं यहाँ पर, वो आप यूज कर सकते हैं सर। और यहाँ सर्टेन कंट्रोल्स हैं सर। स्ट्रीमिंग अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, ये टॉगल करता है, स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों साथ में होगा। अगर एक स्टार्ट हो रहा है तो फिर स्टॉप हो जाएगा। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, देख रहे हैं। जैसे हमने किया इसको स्टार्ट स्ट्रीमिंग, तो देखिए सर अभी तो कुछ है नहीं, ये स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से आप स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह से सेटिंग्स है, एग्जिट है एंड लाइक दैट। एग्जिट करेंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे। ये सारे बटन्स यहाँ पर भी आपको मिलते हैं सर, फाइल ऑप्शन में भी। अपर हैंड साइड पे देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे शो रिकॉर्डिंग, रिमार्क, सेटिंग, ये सब चीजें यहाँ भी दिखती हैं, एग्जिट, ये सब चीजें यहाँ भी होता है, ठीक है ना। लेकिन क्विकली एक्सेस करने के लिए कंट्रोल में यहाँ पर राइट हैंड साइड पे बॉटम पे भी दे दिया है। यही ओबीएस के टोटल सेटिंग्स हैं सर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कैसे सीन क्रिएट करते हैं। तो मैं सर ये क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीन पैन पे, आप देखिए सर, अपनी नजर यहाँ पर रखिएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड पे जो बॉटम पे सीन पैन है वहां पे रखिएगा। सबसे पहला देखिए सर, नेम क्या है सर, वेबकैम प्लस नेम टैग है ना, ये आ रहा है। हम क्या करते हैं सर कि इस सीन को डिलीट कर देते हैं। तो बोलिए सीन को कैसे डिलीट करेंगे सर, तो देखिए कुछ कंट्रोल्स हैं उस पैन पे। प्लस का मतलब नया क्रिएट करने के लिए है, देखिए डस्टबिन वाला ऑप्शन है, बिन का ऑप्शन है, ये डिलीट करने के लिए है। ये अप एंड डाउन किसी सीन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं सर। देखिए जैसे अभी वेबकैम प्लस नेम टैग कहां पर है सर, किस पोजीशन में है, फर्स्ट में है, इसको नीचे लाना है तो इससे ला सकते हैं। इसको क्लिक करिए, देखिए अपने आप नीचे आ गया, ये थर्ड पे आ गया, ये फोर्थ पे आ गया। इसको अगर ऊपर करना है तो ये अप वाला कैरो कर दिए, देखिए सर ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर। ये इस काम के लिए सर। तो ये आप समझ गए, चार ही चीजें हर जगह मिलेंगी सर आपको। प्लस नया ऐड करने के लिए, एग्जिस्टिंग को डिलीट करना है तो इसको डिलीट करने के लिए है। देखिए लिखा हुआ भी आता है, उस पर करेंगे तो रिमूव सिलेक्टेड सीन।
ये अप एंड डाउन करने के लिए। तो मैं नेम टैग वाला सीन इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का मतलब ये ब्लू हो जाएगा सर, आप इसको डिलीट कर दीजिए। आर यू श्योर? यस कर दीजिए। देखिए सर ये खत्म हो गया। बोलिएगा सर ये वाला भी डिलीट कर दीजिए, पीपीटी वाला डिलीट कर देते हैं सर, इसको भी हम, तो इसको भी डिलीट कर दीजिए। पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस सीन? यस, देखिए वो भी खत्म हो गया। बोले पीपीटी वेब कैम, इसको भी डिलीट कर दिए सर, तो इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। पूछता है डू यू वांट टू श्योर, देखिए पूछ रहा ना यहाँ पर, आर यू वांट, है ना, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस? यस कर दीजिए, ये भी डिलीट हो गया। देखिए डिलीट होने का मतलब यहाँ पर अब नहीं है सर, यहाँ पर अब एक ही सीन बच रहा है, देख रहे हैं सर, एक ही सीन यहाँ पर बचा है सर। अच्छी बात है। बोलिएगा सर ये तो ठीक है, एक सीन बचा हुआ, आप जरा दूसरा बताइए कि सीन कैसे क्रिएट करेंगे। जी सर। तो सीन क्रिएट करने के लिए सर मैंने आपको बताया कि प्लस पे जाइएगा। कहाँ पे जाना है सर? ऑलवेज प्लस पे। प्लस पे। प्लस पे। प्लस पे आपने क्रिएट किया। देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा प्लीज एंटर द नेम ऑफ द सीन। तो देखिए सीन का नाम कुछ भी रखिए, सीन 2, सीन 3, सीन 4 रख सकते हैं, कोई XYZ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि सीन का नाम वैसा रखिए कि बाद में आप उसको पहचान सकिए इस सीन में क्या है, व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस सीन। तो देखिए सर हम इसमें क्या करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं वेब कैम, हालांकि सीन 2 भी लिख देते तब भी चलता, XYZ रख दीजिए तो भी चलेगा। हमने इसका नाम लिख दिया सर वेब कैम प्लस नेम टैग। तो इससे पता चल रहा है कि ये सीन हमने क्रिएट क्यों किया है सर, कि इसमें वेब कैम दिखेगा यानी हम दिखेंगे, है ना, जो वीडियो आपका दिखेगा, प्लस आपका नेम टैग दिखेगा, आसिम जफर लिखा हुआ दिखेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट सर कि नहीं? यस सर। आप बोलिएगा सर यहाँ ऊपर वाला सीन में तो ये दिखता है, आपका वीडियो दिख रहा है, नीचे वाले पे हम करते हैं तो कुछ नहीं दिखता है। तो देखिए फर्क कहाँ पर है सर, पहला वाला के देखिए करस्पॉन्डिंग सोर्स वाले बगल वाले पैन में देखिएगा यहाँ वेब कैम ऑलरेडी एडेड है, देख पा रहे हैं सर? ये वाला वेब कैम है। लेकिन इस सीन जो अभी सीन बनाया आपने उसके करस्पॉन्डिंग देयर आर नो सोर्सेज, अभी आपने कोई ऐड नहीं किया है। तो बोलिए चलिए ऐड करते हैं सर। तो सोर्स ऐड करने के लिए आपको कहाँ आना है, सोर्स वाले पैन पे आइएगा, इस पैन पे, और ये प्लस पे जाइएगा सर। तो सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे सर, वेब कैम ऐड कर देते हैं, करेंगे ना। तो वेब कैम ऐड करने के लिए यहाँ वेब कैम नहीं मिलेगा, ये सारे सोर्सेज के नाम लिखे हुए सर, लेकिन ये जेनेरिक नेम है, तो इसको हम लोग वेब कैम यहाँ पर मिलता है, वीडियो कैप्चर डिवाइस बोलते हैं सर उसको। जितने भी कैमरा है ये है उसको क्या बोलते हैं सर हम लोग, वीडियो कैप्चर डिवाइस। इसको आपने क्लिक कर लिया सर। अब आपसे पूछ रहा है कि वीडियो कैप्चर डिवाइस कौन सा, वेब कैम, तो यस वेब कैम ले लीजिए, ओके कर दीजिए। जैसे हमने ओके किया देखिए सर ये यहाँ पर ऐड हो गया, देख पा रहे हैं सर? यस सर। और यहाँ सर। कुछ लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, बोले सर फिर से करके बताइए, तो फिर से कर लीजिए सर, इसको अनडू कर देते हैं हम लोग, है ना, हटा दिया सर। तो देखिए सर कैसे ऐड करेंगे, ये सीन है ऑलरेडी, सोर्स वाले पैन पे जाना है, प्लस करना है आपको। हमने बोला वेब कैम को वीडियो कैप्चर डिवाइस बोलते हैं, तो वीडियो कैप्चर डिवाइस लीजिए, वेब कैम उसका नाम लिख दीजिए सर, इसे हमने नाम लिख, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, तो वेब कैम हमने लिख दिया, ओके कर दिया। देखिए सर ये वेब कैम यहाँ पर आ गया, समझ पा रहे हैं सर? यस सर। अच्छा सर ये बिल्कुल स्क्रीन में नहीं आया है, ये थोड़ा बहुत आधा स्क्रीन में आया है, इसको पूरा कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं सर, यहाँ राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद नीचे देखिएगा सर ट्रांसफॉर्म आता है एक ऑप्शन, लिखने की जरूरत नहीं है सर, ये सारी बातें मेरे प्रेजेंटेशन। तो ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, ट्रांसफॉर्म में देखिए सर यहाँ फिट टू स्क्रीन है, देख पा रहे हैं सर, फिट टू स्क्रीन। जी। जैसे फिट टू स्क्रीन करेंगे ये देखिए अपने आप ऐसा हो जाए, ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन क्या है सर, ये ऐसा था, इसको आप ड्रैग व्रैग करके भी फिट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके भी फिट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऐसा करके फिट करेगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा, कभी कभी इसका प्रोपोर्शन ठीक नहीं होता है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसके लिए तरीका अच्छा यही है कि राइट क्लिक कीजिए सर, ट्रांसफॉर्म पे जाइएगा और फिट टू स्क्रीन कर दीजिएगा सर, ये अपने आप फिट हो जाएगा एकदम सही प्रोपोर्शन। यहाँ तक सर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। यस सर। No problem, sir. Understood. Yes, sir. sir. Please proceed. अब मान लीजिए कि ये बोले कि सर अभी कहाँ हुआ, ये तो अभी सिर्फ वेबकैम आया, नेम टैग तो आया नहीं, अभी नाम कहाँ आया सर आपका? तो बोलिए सर नाम तो नहीं आया। हाँ तो लाना पड़ेगा ना, अभी ऐड नहीं किया ना। देखिए सोर्स वाले में जाइएगा, प्लस, दो सोर्स होते थे ना उसमें, वेबकैम प्लस नेम टैग, तो नेम टैग नाम कुछ भी नहीं मिलेगा सर यहाँ, उसको इमेज फाइल बोलते हैं। कौन सा फाइल हम बोलते हैं सर? इमेज फाइल। इमेज यहाँ पर है ऑलरेडी, है ना, तो इमेज है, उसका नाम हम रख देते हैं नेम टैग, कुछ भी नाम रख दिए सर, है ना, नेम टैग मैंने नाम दिया, ओके। अब कहाँ पर इमेज फाइल है सर, ब्राउज करना पड़ेगा आपको। तो इमेज फाइल हमने सर आपके पास होना चाहिए तभी सर आएगा, तो हमने शायद कहीं इमेज फाइल रखा हो। देखिए सर यहाँ डॉक्टर आसिम जफर लिखा हुआ है, ऐसा इमेज फाइल दिख रहा है आपको? दिख रहा है या नहीं? जी सर। यस सर। कर दिया, देखिए सर यहाँ आ गया, ये सही है, डॉक्टर आसिम जफर लिखा हुआ है, हाँ यही है, ओके कर दिए सर। जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए सर ये आसिम जफर लिखा हुआ यहाँ आ रहा, इसको ड्रैग कीजिए माउस से पकड़ के, जहां लाना चाहते हैं, जहां रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू।
जहां रखना चाहते हैं रख दीजिए, रीसाइज करना चाहते हैं थोड़ा रीसाइज कर लीजिए, बड़ा छोटा जो भी करना चाहते हैं। ये देखिए सर बिल्कुल बन के आ गया। तो इतना ही आसान है सर ये सब काम करना, देख रहे हैं सर, कोई मुश्किल काम है? नहीं सर, नहीं लोगों को दोबारा सुनने में है, दोबारा देख लीजिए सर, इसको मैंने हटा दिया सर, देखिए अब यहाँ से खत्म हो गया। कैसे करना है सर आपको बताइए? नेम टैग भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, नेम टैग भी हमने यहाँ से क्या कर दिया सर, डिलीट कर दिया। तो प्लस पे जाना है सर आपको, मैंने बोला नेम टैग क्या है, इमेज फाइल है, इमेज को सिलेक्ट किया, इमेज का नाम लिख दिए सर, तो नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने पहचानने के लिए नाम लग गया, नेम टैग लिख दिया, ओके कर दिया सर। अब बोलिए नेम टैग कहाँ पर आपने रखा है, तो देखिए हमारे पास इमेज फाइल ऑलरेडी यहाँ पर है सर, यहाँ गए इसको सिलेक्ट कर लिया सर, बस ओके कर दिया, ये चीज यहाँ पर आ गई। और इसको ड्रैग करके सर जहाँ रखना है वहां पर आपने रख सकते हैं जी, है ना। अब आप जब रिकॉर्ड करेंगे सर तो ये पूरी बात ऐसी रिकॉर्ड होगी, ठीक है सर। यहाँ तक समझ गए सर या नहीं समझे, सो बताइए। यस सर, यस सर, जी सर समझ गए। अंडरस्टूड सर। कितने सीन क्रिएट कर लिए सर? 2 जरा साहब, हाँ वेब कैम क्रिएट कर लिया, और एक सीन का नाम हमने कहा वेब कैम प्लस नेम टैग, इसमें सिर्फ वेब कैम दिख रहा है सर पहला वाला में, दूसरे सीन में क्या दिख रहा है सर? नेम टैग के साथ दिख रहा है। अच्छा सर, कभी कभी जरूरत होती है जैसे इस वाले चीज की, देखिए तो सर हम अभी आपसे क्या कर रहे हैं, हम पीडीएफ में हैं और इसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारी बात भी रिकॉर्ड होनी चाहिए, और ये वाला जो पीडीएफ चल रहा है हमारा ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए। कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है नहीं सर? बताइए। जी सर, बिल्कुल। अब इसको कैसे पीडीएफ को कैसे लाएंगे यहाँ पर हम और रिकॉर्ड करेंगे? तो कुछ नहीं सर, तो सबसे पहले जिस पीडीएफ को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो पीडीएफ होना चाहिए। तो देखिए सर यही वाला पीडीएफ है, मान लीजिए ये हमारे पास है, इसी को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मान लीजिए पीडीएफ फाइल है ना सर, ये वाली ये पीडीएफ ही फाइल तो है, ये देख रहे हैं आप जी। तो इसी को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो देखिएगा सर कैसे करेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? एक अलग सीन क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। यस सर। सीन क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएगा आप बताते रहिए सर, मैं जाता हूँ, आप बताइए सीन क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना? प्लस में जाना है। वेरी गुड। उसका नाम क्या रखूं सर? पीडीएफ नाम रख देता हूँ जी, पीडीएफ। जैसे ही पीडीएफ करेंगे, पीडीएफ नाम एक सीन तो बन गया, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अभी कोई सोर्स आपने ऐड नहीं आया है, नहीं दिख रहा, ब्लैक दिख रही। तो चलिए आप सोर्स भी ऐड करते हैं, तो सोर्स ऐड, सोर्स आफ्टर स्पीकिंग नेक्स्ट साइन पे जाएं सर, है ना, ऑफ कर लीजिएगा सर, तो बातचीत करने में आसानी होगी, है ना। पूनम जी, पूनम बात प्लीज। हो गया सर, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं सर, सोर्स बनाना था ना, तो प्लस जाते हैं। अच्छा दूसरी बात क्या होती है ना, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होता है, तो हम देखिए ऑनलाइन मोड पे बात कर रहे हैं, हमको आप विजिबल नहीं है, ठीक है कि नहीं। जब स्टूडेंट और टीचर फेस विजिबल होते हैं तो पढ़ाने का तरीका अलग होता है, माइंड की सेटिंग अलग होती है। यहाँ हम ब्लैंक बैठे हुए हैं, हम सिर्फ अपने स्क्रीन के सामने बोलते चले जा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और ऊपर से जब थोड़ा सा हल्ला गुल्ला नॉइज होता है तो हमारा तारतम्य बिगड़ जाता है सर। तारतम्य समझते हो? जी सर। जी सर, लगा जो होता है जो है सर वो खराब हो जाती है कि नहीं। तो इसीलिए अच्छा जी सर, तो फिर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको मजा नहीं आएगा, लुत्फ नहीं आएगी बात की, अदरवाइज यू विल एंजॉय। तो सर उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा हम लोग सीख भी रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। तो खैर पीडीएफ पे जाइएगा सर, हमने बोला था क्या लेना है आपको? पीडीएफ लेना है। तो बोलिए पीडीएफ नाम से कोई सोर्स यहाँ नहीं है, देखिए सर किसी भी नहीं, पीडीएफ नाम से सोर्स नहीं मिलता है ना। तो हमने बोला था ये जेनरिक नेम होता, उसको हम लोग बोलते हैं सर डिस्प्ले कैप्चर। क्या बोलते हैं सर? तो देखिए डिस्प्ले कैप्चर कहीं है सर, देखिए, या विंडो कैप्चर भी बोल सकते हैं, विंडो कैप्चर है, विंडो कैप्चर या नहीं देखिए कहीं? यस सर, देखिए विंडो कैप्चर है ना। अच्छा अब विंडो कैप्चर का एक नाम देना है तो नाम दे दीजिए, पीडीएफ नाम रख दिया सर। नाम कुछ भी रख सकते हैं सर, ये सिर्फ नाम हम आइडेंटिफाई करने के लिए रख रहे हैं। अच्छा सर ओके करिए सर। अच्छा दिस नाम इज ऑलरेडी इन यूज बोल रहा है, तो छोड़ दीजिए सर, इसका नाम कुछ और रख दीजिए, पीडीएफ 1 कर दीजिए, है ना सर। हमने क्या कर दिया? ओके। अब देखिएगा सर इस तरह का स्क्रीन आएगा, ये वाला स्क्रीन आएगा, गौर करिएगा, ये अभी आएगा सर, ठीक है ना सर। स्क्रीन आया है। अब आप देखिए यहाँ विंडो लिखा हुआ, विंडो को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो इस विंडो में क्या क्या चीजें खुली हुई हैं। तो देखिए सर यहाँ पर विंडो में हमारा देखिए लाइव स्ट्रीमिंग एडोब रीडर पीडीएफ खुला हुआ कि नहीं, ये फाइल देखिए, यही वाला फाइल तो दिखाना चाहते थे हम, लाइव स्ट्रीमिंग विद ओबीएस स्टूडियो। देख रहे हैं सर यहाँ दिख रहा है या नहीं? बिल्कुल सर, यस सर। थोड़ा छोटा है लेकिन आप गौर करिएगा तो दिखेगा, लाइव विद ओबीएस प्लेटफॉर्म दिख रहा है सर, ले लिया। देखिए यहाँ दिखने लगा, जैसे सिलेक्ट करेंगे प्रीव्यू में ये फाइल दिखने लगी, है ना सर। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, ये जैसे ही सिलेक्ट किया यहाँ प्रीव्यू में ये फाइल दिखने लगी, बस ओके कर देना है सर। जैसे ओके किया देखिए सर ये आपका फाइल पूरा यहाँ दिख रहा है, पूरी फाइल आपको क्या कर रही है सर यहाँ पर दिख रही है, देख रहे हैं सर? यस सर। देखिए ये पूरी फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है।
तो बोलिएगा सर ये ठीक है, अब यहाँ से आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए, और ये बात जो यहाँ पर दिख रही है साथ साथ रिकॉर्ड होने लगेगी। तो इसका तरीका ये है सर कि आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आपको अपने पीडीएफ में रहना है। जो भी एक्सप्लेन करें यहां से करें। आप जैसे एक्सप्लेन करते करते आप यहां पहुंच गए, ये बातें खुद ब खुद ओबीएस में रिकॉर्ड हो रही। देखिए अभी आप कहां पर है सर, टेबल ऑफ कंटेंट में है, तो ओबीएस में जाइए, यहां भी देखिए क्या दिख रहा है आपको, रूल्स वही चीजें दिख रही हैं। दिखेगी। तो आपको ओबीएस में नहीं रहना है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, आपको अपने पीपीटी में या अपने पीडीएफ से एक्सप्लेन करना है। जाहिर सी बात हम यहीं से एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर आ गए, एक्सप्लेन करते अपने पीडीएफ में यहाँ पर हैं, तो देखिए यहाँ पर कंप्राइजिंग वेब कैम प्लस ऑडियो ये दिख रहा है सर। यही चीज आपके रिकॉर्ड हो रहा होगा कहाँ पे, ओबीएस में भी। ठीक है सर, ओबीएस में भी। जी सर। आप ओबीएस से मूव करना चाहेंगे तो नहीं होगा सर, ये ओबीएस से स्लाइड मूव नहीं होगा या पेज मूव नहीं होगा। मूव कहाँ से होना है, आपके ओरिजिनल पीडीएफ से। यहाँ से एक्सप्लेन करना है सर आपको। तो से फॉर एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते करते, मान लीजिए कि एक्सप्लेन करते करते आप पहुंच गए यहाँ पे, तो देखिए सर यहाँ क्या दिख रहा है आपको, है ना, ये चीज दिख रही है। यही चीज आपको ओबीएस में भी दिख रही होगी। ठीक है सर, खैर तो बात चले हम लोग देखेंगे। तो पीडीएफ एक सीन क्रिएट करना सीख गए यहाँ पर या नहीं सीख गए? बिल्कुल सर। जी सर। अच्छा, मान लीजिए एक और सीन करने बोले सर वो वाला बता दीजिए जिसमें आप पीपीटी भी बनाते थे, है ना, पीपीटी अपना इमेज भी दिखे। हाँ वो भी दिखे, तो चलिए वो भी कर लेते हैं, क्या समझना। तो सबसे पहले सोर्स चाहिए ना, सोर्स का मतलब पीपीटी चाहिए। एक पीपीटी में ढूंढ लेता हूँ सर, मेरे पास कहीं पर होगा तो पीपीटी लाना पड़ेगा ना। तो पीपीटी डी पे गए और लेक्चर नोट्स पे चले गए अपना, कहीं से एक पीपीटी उठा लीजिए। मान लीजिए क्रिप्टोग्राफी एक पीपीटी में मिली, कोई भी पीपीटी ले लीजिए। ये पीपीटी है सर, ठीक है सर, ये पीपीटी है। देखिए पीपीटी, ये पीपीटी मैंने रख लिया सर यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब हम आते हैं सर क्या बनाना होगा उसके लिए। आप लोग बताते जाइए सर, अब हम बताते हैं क्या बनाना है, बोलिए। अब सर एक अलग स्लाइड बनाना है, एक सीन बनाना पड़ेगा ना। तो सीन बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा सर, प्लस पे जाना, प्लस साइन पे, प्लस में, प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, उसका एक नाम लिख देंगे सर, सेम पीपीटी लिख देंगे सर। पीपीटी भी रखना है और वेब कैम भी बोलते हैं ना, कहे कि आप अपना फोटो भी चाहते हैं, है ना, वीडियो भी। जी 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 सर। तो वेब कैम लिख दिया, जिससे कि पहचान सके उस सीन को, बस उस नाम को देख के आप पहचान लीजिएगा। ओके, तो यहाँ नाम से पता चल रहा है इसमें तो सिर्फ वेब कैम है, इसमें वेब कैम प्लस नेम टैग है, सिर्फ पीडीएफ है, इसमें पीपीटी और वेब कैम आएगा। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग अभी सर कोई सोर्सेज यहाँ नहीं है, ये ब्लैंक है। तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे सर, हम पीपीटी सोर्स पीपीटी। चलिए सर, तो पीपीटी ऐड करने के लिए प्लस में गए। अब पीपीटी वगैरह को हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं सर, विंडो कैप्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंडोज कैप्चर। हाँ, तो विंडो कैप्चर में आप विंडोज कैप्चर, विंडो कैप्चर में अब नाम देना पड़ेगा सर। तो यहाँ नाम दे दीजिए, पीपीटी नाम दे दीजिए, ओके करिए। अब देखिए सर यहाँ पर आप खोलिए कि अभी जो पीपीटी हमने देखी, क्या देखिए पीपीटी दिख रहा है कि नहीं सर, देखिए तो पावर पॉइंट दिख रहा है सर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चैप्टर 3 क्रिप्टोग्राफी दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, देखिए आप। जी 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 सर, दिख रहा है। ऐसे क्लिक करेंगे और ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाए। आप लोग जरा सा म्यूट जरूर कर लीजिएगा ना, बोलने के बाद म्यूट कर लीजिएगा। तो देखिए सर ये आपका यहाँ क्या है सर, आ गया। अच्छा बोलिएगा सर ये तो आ गया, लेकिन है कि वो फोटो नहीं आया अभी। हाँ वीडियो हमने ऐड नहीं किया ना, अभी ऐड करिए। तो फिर आपको सोर्स में जाना है, प्लस पे जाना है सर, और वीडियो कैमरा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, आपको बताया था वीडियो कैप्चर डिवाइस। क्या बोलते हैं सर, वीडियो कैप्चर डिवाइस। यहाँ पर जाइए, वेब कैम अभी आपने ऐड किया तो देखिए ऑलरेडी है वेब कैम, ओके कर दीजिए। जैसे ओके करिए देखिए वेब कैम आ गया, बोले हाँ ये सब तो आ गया। अब इसको रिसाइज कर सकते हैं, हमने बोला था ना छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और जहां पर भी रखना चाहते हैं अपने सुविधा के अनुसार, जो आप जैसे जिस मोड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख लीजिए, बोले नहीं सर हम नीचे, सॉरी बोलिएगा सर हम यहाँ नहीं, इसको हम लोग यहाँ रखना चाहते हैं। तो जहां भी रखना चाहते, जहां भी तो ड्रैग कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं सर। तो हमने मान लीजिए अपर कॉर्नर पे हमने यहाँ पर सर ऐसे इसको यहाँ से रख दिया। देखिए सर, तो अब क्या क्या दिख रहा है सर आपको, बच्चे को क्या दिखेगा, पीपीटी भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है सर, टीचर वीडियो। हाँ टीचर भी दिख रहा है, जो भी बोल रहे हैं उनका ऑडियो भी सुना है, उनको दे रहा है, वीडियो भी दिख रहा है। वीडियो भी। हाँ, अब मान लीजिए सर ये सेटिंग में हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसी सेटिंग पे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे हम थोड़ा सा बता देते हैं सर आपको। तो देखिए रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे अच्छा कोट पैंट पहन लीजिए, मेकअप ठीक कर लीजिए, अपना ड्रेस व्रेस ठीक करने के बाद, ताकि आपकी लुकिंग अच्छी हो जाए। दिखिए पानी जरूर पी लीजिएगा सर, गला वाला ठीक होना चाहिए, है कि नहीं, वरना फिर गला सूखता है। आप सब सेटिंग करने के बाद सर आपको देखिए आना है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, राइट हैंड साइड पे देखिएगा सर, बॉटम पे जो पेन है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, क्या करेंगे सर हम यहाँ पर
तो इसको जैसे ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे ये अपने आप बदल जाएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी आपको जब खत्म करना होगा तो यहीं से स्टॉप करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, करने के बाद हमें आना पड़ेगा अपने पीपीटी में। एक्सप्लेन कहां से आप करेंगे एज ए टीचर? सर स्टार्ट रिकॉर्डिंग कहां से आया है एक बार जी? राइट में, बिल्कुल राइट में, कंट्रोल से। हाँ अभी बताएंगे, कंट्रोल में ना स्टार्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे देखिए ना, यहाँ पर है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अभी दिखाते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग जैसे ही करेंगे उसके बाद हमको आ जाना है अपने पीपीटी में, हम वहां से पढ़ाना शुरू करेंगे। और जो भी पीपीटी दिख रहा होगा, जैसे देखिए हम पीपीटी में आपको दिखाते हैं इस वक्त क्या चैप्टर 30 दिख रहा, अब यहाँ से एक्सप्लेन करना हम शुरू करेंगे। देखिए अब यहाँ पर है, ये आ रहा, तो देखिए जो भी यहाँ आएगा ओबीएस में वही चीजें रिकॉर्ड हो रही होंगी। देखिए ओबीएस में भी वही चीज रिकॉर्ड हो रही है। जी कर रहे सर। हैं? तो आपको अभी पढ़ाएंगे तो ऑडियो कैप्चर होगा? ऑडियो कैप्चर की जरूरत नहीं पड़ती सर, वेब कैम में दोनों चीजें होती हैं, कैमरा भी और वो भी, है ना। तो अपने आप एक्स्ट्रा माइक अगर लगाएंगे आप, अच्छा, इसमें ऑडियो है तो माइक्रोफोन भी ऐड करना पड़ेगा सोर्स में, बस इतनी सी बात। ठीक है सर? जी सर, जी सर। वही सर मैं ऑडियो सोच रहा कैप्चर था माइक्रोफोन कैप्चर डिवाइस भी है, देखिए ऑडियो कैप्चर, ऑडियो इनपुट। हाँ अगर अलग से माइक रखेंगे तब ये वाला करना पड़ेगा। वेब कैम में ले लेता है दोनों एक ही साथ सर, आपको अलग से नहीं करना। खैर सर, तो ये सेटिंग करने के बाद हमने सेटिंग कर लिया सर, देखिए हम यहाँ पर हैं और अपने अब हम सर रिकॉर्डिंग का एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं सर। 1 मिनट का छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं कि कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, करूं स्टार्ट? यस सर। जी सर। अपने अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिएगा आप लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट करिएगा। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए देखिए हमको आना राइट हैंड साइड पे, देखिएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग है। जैसे ही हम इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे ये चेंज हो जाएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग में। गौर कीजिएगा यहाँ पहले, देखिए सर अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया है ना। नाउ आई एम कमिंग टू माय पीपीटी एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 30 दैट इज रिलेटेड टू cryptography. What I am going to discuss today is that first of all we will see what is cryptography, and we will see 2 categories of cryptography. What happens basically when a sender is transmitting any message to any receiver, first the message which is to be transmitted is known as plain text. That is known as plain text. So before transmitting, what we do for the security reason, we encrypt it or we encode the message. That encoded message is simply known as ciphertext. So the encoded message, that is encrypted message, is transmitted through the transmission media, and when it reaches to the receiver, this ciphertext is decrypted. Decrypted means it is decoded to the original message, that is plain text, and the original message, that is the plain text, is given to the receiver. So this technique basically is known as cryptography. So in cryptography, we do have 3 components. First, the communicating parties should be there, that is sender should be there, and the receiver should be there, and whatever text you want to send, that text should be there, and there should be a mechanism for encrypting and decrypting the message. The message will be encrypted at the sender's end, and it will be decrypted at the receiver's end. So that is the basic philosophy of cryptography. Okay participants, I am stopping the recording over here. You just see a stop recording. देख पा रहे हैं सर यहाँ पर? I am just stopping the recording. The recording has been stopped. Yes sir. और आप देखिए कि यहाँ पर किस स्लाइड में है, जो स्लाइड हम एक्सप्लेन कर रहे थे उसी स्लाइड पे यहाँ पर है। तो बोलिएगा ये तो सर हो गया, तो अब जरा सा आप दिखाइए तो कि वो रिकॉर्ड कहाँ पर हुआ। सर ये स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखा नहीं है मुझे, प्लीज सर। जहां पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग था वहीं पे स्टॉप रिकॉर्डिंग टॉगल करता है। जब स्टार्ट करेंगे इसका नाम हो जाएगा स्टॉप। ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम बोलिएगा सर दूसरा सवाल क्या है कि ये दिखेगा कहां से सर? जो आपने रिकॉर्डिंग किया था उसको दिखा दीजिए। मन करता है देखने का कि नहीं आपका? जी सर दिखाइए। तो देखिए सर वहां पर जाना सर, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे अपर ऑनर पे फाइल देख रहे हैं सर। अब पहला ही ऑप्शन है शो रिकॉर्डिंग, देख रहे हैं सर? शो रिकॉर्डिंग। जी सर। जैसे शो रिकॉर्डिंग करेंगे जितनी फाइलें आपने रिकॉर्ड की सब यहाँ दिख रही। तो देखिए आज का तारीख है 12 फरवरी 24, ये रिकॉर्डिंग है। ये सर रिकॉर्डिंग में प्ले करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपको दिखेगी। आवाज नहीं सुनाई देगी क्योंकि माइक्रोफोन मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए सर यही रिकॉर्डिंग था। देखिए सर यहाँ पर बिल्कुल सर। अब देखिए जो भी आपने बोल रहा है वो सुनाई देगा, लेकिन हमने माइक्रोफोन हम यूज कर रहे हैं अभी, तो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था।
देख रहे हैं सर, यही सब चीजें थी और ये वीडियो चल जी रहा सर। था, जी सर। है ना। तो ये वीडियो देखिए चल रहा है और टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। हमारी आवाज आपको इसलिए नहीं सुनाई दे रही कि माइक्रोफोन अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बंद करेंगे तब इसकी आवाज भी आपको सुनाई देगी। अच्छा, ऐसा करने के बाद फिर हमने क्या किया था, इसको स्टॉप कर दिया था सर। देखिए इतना रिकॉर्डिंग किया, फिर हमने जाकर के रिकॉर्डिंग को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो जब आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं वो सब चीजें रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ओबीएस वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ यहाँ पे देख लिया सर। डन जी यस सर। एक क्वेश्चन है। यस सर। बोलिए बोलिए सर एक क्वेश्चन है। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन एक एक करके This is पूरा regarding- आगे बात करना है हमको। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ सर, ये जो आपने जो पीपीटी जो आपने करा, ये आपने फुल स्क्रीन में नहीं करा था, ये आपने हाँ, ऐसे नहीं किया था, ऊपर का presentation- नहीं किया। आप करेंगे तो आपको फुल हाँ। स्क्रीन हमने ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है ना। हाँ, हम अगर इसको लेकिन फिर ऐसा करके रिकॉर्ड करते तो ऐसा करके रिकॉर्ड हाँ है ना, जैसा आप करेंगे वहां वैसा रिकॉर्ड होगा, कोई इशू नहीं। हमने ऐसे ही किया था, ठीक है ना। सर, एक बार वो खत्म हो जाए तो फिर हम लोग जस्ट विंडो चेंज करके फिर ओबीएस वाले इंटरफेस में आके फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग करना होता है ना सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वहीं पे करना पड़ेगा वहीं सर, जाके। और एक बार जब आपका ये जो प्रेजेंटेशन है ये खत्म हो जाए, फिर है ना वो जो सेटिंग होता है, एक बार हम लोगों ने उसको डाउनलोड कर दिया ओबीएस को, फिर सेटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फिर वो पता नहीं चल रहा है, तो फिर वो आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे सर? सब में आप यस 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 ओके 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 कर, कुछ सेटिंग नहीं करना आपको, सब डिफॉल्ट वाला ले लीजिए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, थैंक आप कुछ नहीं करना सर, ओके 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 यस यस यस, बस हो जाएगा। कुछ आपको अपने तरफ से नहीं करना है, ठीक है ना। शुरू में सब- हेलो सर। जी सर। सर एक ये चीज है कि आज की जो क्लास आपने लिया है, इसको हम लोगों को अगर मिल जाएगा ग्रुप में भिजवा दीजिए तो हम लोग उससे बहुत लाभान्वित हो जाएंगे। आपका नाम अजय जी, कौन बोल रहे हैं आप? सर रमेश सोनी। रमेश जी, आप लेट में आए। मैंने कहा कि ये सारी चीजें पढ़ाने से पहले ही मैंने आपके जो गूगल क्लासरूम कल जो मैंने क्रिएट किया था और उसमें मैंने दिखाया भी आपको, तो ये गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया सर, अपलोड कर दिया है ना। तो ओके सर, 2 मिनट सर में ले हो गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये देखिए सर ऑलरेडी क्लासरूम जाएंगे, देखिए ओबीएस स्टूडियो है ना यहाँ पर लोड किया हुआ, देख रहे हैं सर। हाँ 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 सर। ये आपका प्रेजेंटेशन, यही प्रेजेंटेशन है, देखिए ये पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ लोड किया हुआ, ठीक है सर। यहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। ठीक सर, चलिए, हम लोग हेलो सर। बोलिए सर, बोलिए हेलो बोलिए सर। बोलिए हेलो सर। बोलिए भाई सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये ओबीएस और विंडोज 7 पे सपोर्ट करता है कि नहीं करता है सर? विंडो बताए तो विंडोज 7 के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि ओबीएस स्टूडियो फॉर विंडोज 7, तब 7 वाला वर्जन आएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिलहाल तो हाँ 10 और 11 वाला वर्जन को सपोर्ट करता है रिसेंट, वो आएगा। और आपको 7 चाहिए तो वो भी मिलता है, सारे वर्जन नेट पे रहते हैं, तो आप लिखिए ओबीएस स्टूडियो फॉर विंडोज 7, तब आएगा, ठीक है। उसी को आप ठीक है सर, थैंक यू। चलिए आप थोड़ा सा आगे सर मेरा एक बढ़ते क्वेश्चन है सर। बोलिए। सर अगर मल्टीपल फाइल्स के बीच में या फिर मल्टीपल पीपीटी के बीच में स्वैप करना है, मतलब रिकॉर्डिंग करते टाइम, देखिए ना, अभी मान लीजिए कि आप पीपीटी वाला सीन पे हैं, आपको अब जाना है नेम टैग, इस सीन पे यहाँ पर क्लिक करते, यहाँ से सीन को क्लिक कर सकते हैं, देख रहे हैं सर, ये इस सीन जी पे आ सर। गए, पीडीएफ वाले सीन पे आ गए, गौर कर रहे हैं सर, जो आप जी देखेंगे सर। पीपीटी वेबकैम पे आ गए, तो यहाँ से आपको क्लिक कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं व्यूइंग रिकॉर्डिंग, ठीक है सर। तो सर जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा, जो ये मतलब डिस्प्ले ओपन होगा, तब वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेगा, या फिर बीच में अगर कुछ हम मान लीजिए मिनिमाइज, अभी हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए रिकॉर्डिंग चल रहा है और हम इस वाले पे हैं, अब हमको लगता है नहीं हमको अपना पीडीएफ दिखलाना है, तो ये पीडीएफ वाला सीन कर दीजिए, ये रिकॉर्ड होने लगेगा। और सर अगर इन केस मिनिमाइज कर देते हैं बीच में, तो फिर तो भी रिकॉर्डिंग होगा या फिर तब रिकॉर्डिंग नहीं होगा, अगर सिर्फ डेस्कटॉप आ जाता है तो? नहीं, जो भी रहेगा वो रिकॉर्ड होगा सर, रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है, ठीक अच्छा, सर, थैंक यू। अच्छी बात है। अब देखिए जैसे कि एक सवाल, अब देखिए इसमें बहुत से, हमारे पास जो ये टाइम दिया गया है इसको पढ़ाने का, सिर्फ कितने घंटे का टाइम है आप लोग बताइए तो, ओबीएस सिखाने का? तो ये 1.5 घंटे की चीज नहीं है, जी सर। ठीक है। तो ये तो आप कहिए कि हमारा जो है ये 8 है कि हम आपको 1.5 घंटे की बता देते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन हम सारी चीजें इसकी 1.5 घंटे में कवर नहीं कर सकते हैं, उसकी टाइम की लिमिटेशन है ना। तो बहुत सी इसकी बारीकियां हैं जो आप आगे जब काम करना सीखेंगे, काम करना जब शुरू करेंगे इस पे, तो आप खुद ब खुद सीखेंगे, बहुत इजी टू यूज होता है। अब देखिए जैसे एक चीज हम आपको बता रहे हैं, अभी मैडम ने एक सवाल पूछा था कि सर आपने जो रिकॉर्ड किया, तो वो तो रिकॉर्ड किया आपने इस पे फुल स्क्रीन पे नहीं किया, तो बोलिएगा हाँ हमने फुल स्क्रीन पे नहीं किया था। चलिए मैडम ने कहा फुल स्क्रीन पे कर दीजिए, तो फुल स्क्रीन पे जब हम किया
तो देखिए तो सर नीचे नीचे कोई कंट्रोल आपको दिख रहा है सर? हमको ओबीएस में अब जाना है तो कहीं से जा सकते हैं नीचे से, कहीं देखिए तो ओबीएस में जाने का हाँ तरीका कोई सर, है? ये यहाँ देखिए, यहाँ पहले इसको देखिए, इस सेटअप में हमको अगर ओबीएस में जाना है यहाँ से चले जाएंगे, पीपीटी में जाना है यहाँ से चले जाएंगे, पीडीएफ में जाना है यहाँ से चले जाएंगे, देख रहे हैं? पावर वर्ड में जाना है यहाँ से चले जाएंगे, गूगल मीट में जाना है यहाँ से चले जाएंगे। तो ये नीचे सारे आइकन्स दिख रहे हैं सर, गौर कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? यस सर, यस यस लेकिन जैसे ही हमने पीपीटी को फुल स्क्रीन में किया, ये वाला जो तीनों दिख रहा है अभी ओबीएस, यही सब नहीं दिखेगा। देखिए दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? नो सर, अभी सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? दिक्कत होगी ना। अब हमको स्टॉप करना है, स्टॉप करने के लिए हमको कहाँ से जाएंगे? दिख ही नहीं रहा वहाँ स्टॉप करने के लिए, जाने के लिए हमको चेंज करना है किसी दूसरे में, तो नई सीन को चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए तरीका क्या है सर, देखिएगा छोटा सा सेटिंग करना पड़ता है। तो बोलिए ये सब बात तो आप बताए नहीं थे, ये सारी बातें मेरे पीपीटी में लिखी हुई है, घबराइएगा मत। देखिए स्लाइड शो पे जाइएगा सर, कहाँ पर? स्लाइड शो ऊपर में है, सबसे ऊपर देखिएगा सर, स्लाइड शो पीपीटी का, देख पा रहे हैं सर स्लाइड शो? जी सर। ऑप्शन है सेटअप, टॉप में देखिएगा, टॉप पे स्लाइड शो, ये एनिमेशन है, स्लाइड शो में गया, सेटअप पे जाइए, पहला ऑप्शन है सेटअप। तो देखिएगा सर सेटअप में यहाँ जो शो टाइप है, पहला वाला क्लिक है, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, नहीं, हमको लेना है दूसरा वाला, ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो, दूसरा वाला आपको लेना है। बस जैसे ही दूसरा वाला क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, बस इतनी सी सेटिंग यहाँ करनी है। सेटिंग बोलिए क्या किया हमने? स्लाइड शो पे गए, पहला वाला सेटअप शो है उस पर गए, ये वाला ना क्लिक करके पहला हमने दूसरे वाले को क्लिक कर दिया, ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो, देख पा रहे हैं सभी लोग? जी बिल्कुल सर। इतना सेटिंग करने के बाद अगर हमने अब फुल स्क्रीन किया तो देखिए अभी भी ये सारे आइकन सब आपको दिख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि नहीं? पीपीटी पे जाना है चले जाइए, यहाँ से जाना है यहाँ जाइए, पीडीएफ पे जाना, देख रहे हैं सर ये सारे आइकन दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे हैं आपको? जी दिख रहा है बिल्कुल। ये इसका फायदा है। तो अब रिकॉर्डिंग के दौरान भी आपको मान लीजिए यहाँ पर आना है, ओबीएस पे सीन चेंज करना है, यहाँ से सीन चेंज कर लिया, यहाँ से हमने सीन चेंज कर लिया, जो भी करना है। अब वहां जब दिखेगा ही नहीं तो कहाँ से सीन चेंज करेंगे? ठीक है ना सर? बात समझ में आ गई सर? जी सर। जी सर, यस तो हम लोगों ने अब थोड़ा सा सर मैं आ जाता हूं अपने प्रेजेंटेशन पे, और यहाँ आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने अब तक कवर कर ली। तो देखिए सर प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन हो गया, क्रिएटिंग सीन भी हो गया, सोर्स कैसे ऐड करते हैं हो गया, कंट्रोल्स वगैरह के बारे में बता दिया, कंप्राइजिंग ऑफ अब सीन कैसे क्रिएट करें, तो वेब कैम और नेम टैग बता दिया, कंप्राइजिंग ब्राउजर विंडो अभी बना के बता दिया सर, तीसरा कंप्राइजिंग वेब कैम और पीपीटी ये भी करके बता दिया। सब हो गया नहीं सर कवर 1 से 7 तक? जी सर। जी सर। अब क्या रहेगा? जी सर, हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा। होगा जी मैडम। सर ये सारी चीजें हो तो गई है और अच्छी तरह से कंफर्म प्रैक्टिस करने के बाद ही होगी। नहीं मैडम ये तो बच्चों जैसा, इसमें बताइए कि कौन सा प्रैक्टिस करने का चीज है, इसमें कुछ नहीं है। आपको तो मैंने क्लियर बताया, ओबीएस ओपन करिए, एकदम बिल्कुल आसान था ये तो। और लेकिन पहली बार करके देखिएगा, थोड़ा सा आपकी मदद के लिए हमने प्रेजेंटेशन दे दिया है, थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना? ओके सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप वर्ड में काम करते हैं, पीपीटी में काम करते हैं, ठीक वैसे ही काम यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा चलिए सर, यहाँ तक जानने के बाद अब 8 और 9 हमसे बात करना है कि स्ट्रीमिंग लाइव टू फेसबुक में लाइव कैसे करेंगे या यूट्यूब में लाइव कैसे करेंगे, बस इतनी सी बात। शुरू करें सर ये वाला काम या कुछ और आपको पूछना है अब तक? यस सर। नहीं सर आगे चलिए। चलिए सर, तो अब लाइव का मतलब क्या है? अब रिकॉर्डिंग का मतलब तो आपने देख लिया कि रिकॉर्ड करना होता है ना, बाद में उसको हम लोग एडिट वगैरह करेंगे। लाइव का मतलब ये लाइव कैसे करेंगे, तो देखिए सर यहाँ पर देखिए, तो ये सारी बातें देखिए लिखी हुई है प्रेजेंटेशन में, स्ट्रीमिंग लाइव टू फेसबुक यूजिंग ओबीएस। तो देखिए ईच एंड एवरी स्टेप सर यहाँ लिखा हुआ है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ये देखिए हो जाएगा ऐसे, है ना, ऐसा करने के बाद। और दूसरा फिर है स्ट्रीमिंग लाइव टू यूट्यूब यूजिंग ओबीएस, ये भी स्टेप सारे लिखे हुए हैं सर, है ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सर कि कैसे करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। तो उसके लिए हमको आना पड़ेगा अपने ओबीएस में। ओबीएस में आ गए सर। तो सर आपकी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सर जो पूरी जो है स्लाइड मिल जाएगी सर, इसकी पीडीएफ इसकी? वो तो मैंने दे दिया सर, ऑलरेडी शेयर कर दिया सर। उसमें सर जो अपने गूगल क्लासरूम में सर? जी सर ऑलरेडी शेयर कर दिया। ओके थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। होने से पहले मैं शेयर कर देता हूँ सर, इसकी चांस ना रहे तो बोलने का कि हमको दीजिए ये कीजिए कीजिए, नहीं। जी जी कल जो पढ़ाऊंगा वो अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ, कोई इशू नहीं। थैंक यू वेरी मच।
सर हम लोग अब आते हैं सर इस पे कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना सर। तो देखिएगा सर, लाइव स्ट्रीमिंग करने से पहले थोड़ा अपना नाक नक्शा ठीक कीजिए सर, क्या है कि लाइव चला जाएगा, पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे होंगे, हमको भी देख लेंगे अभी, है ना। तो बार बार सर ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं, जो लोग फेसबुक वगैरह में एक्टिव रहते हैं वो तुरंत देख लेते हैं, सर आपको देखा था सर, आप कुछ कर रहे थे। हमने नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे, हम FIP था उसमें क्लास ले रहे थे, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो इसीलिए हम थोड़ा कपड़ा उपड़ा ठीक कर लेते हैं सर अपना, है ना। तो ठीक है सर, आइए सर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए सर, जैसे मान लीजिए एक हमने बताया कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, तो दो इस तरह के प्लेटफॉर्म है, एक तो फेसबुक है सर जो दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस होता है, और दूसरा सर यूट्यूब है। तो पहले हम फेसबुक के थ्रू सीखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है सर, OBS में हो क्या रहा है, ये देखिए इसको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं सर, फीड। ये जो भी आपका वीडियो आ रहा है, ये आ रहा, कैमरे के थ्रू इसको लेकर हम कनेक्ट कर देंगे इसको फेसबुक से। अब जो भी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही होगी वो आपको फेसबुक में सर लाइव दिखेगी, ठीक है सर। तो जो लोग आपके फेसबुक से जुड़े हुए होंगे वो आसानी से उसको देख सकेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं सर कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं यूजिंग फेसबुक। शुरू करें सर। यस सर। फेसबुक में आपका अकाउंट होना चाहिए, तो सभी लोगों का आजकल होता है फेसबुक में अकाउंट नहीं है जिनका, तो उनको क्रिएट करना पड़ेगा सर। पहले आपका अकाउंट होना चाहिए ना, फेसबुक को आप एक्सेस कर सकते हैं, ये जरूरी है। तो चलिए हम अपने फेसबुक में सबसे पहले जाते हैं। तो फेसबुक में जाने के लिए हमको सर यहाँ पर एक हमने ओपन किया, हमने यहाँ लिख दिया फेसबुक। जैसे ही फेसबुक लिखेंगे सर लॉगिन, तो देखिए सर ये क्या हो रहा। अभी हमने फेसबुक ओपन किया सर, हम अपने फेसबुक में लॉगिन करना चाहते हैं, जो हमारा फेसबुक है ऑलरेडी, फेसबुक अकाउंट। देखिए सर ये हमारा फेसबुक का अकाउंट है, देख पा रहे हैं सर यहाँ आसिम जफर लिखा हुआ है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, विजिबल सर। अब देखिए सर आपको कुछ नहीं करना है लाइव स्ट्रीम करने के लिए, क्या करना है, ये देखिए लाइव वीडियो देख पा रहे हैं सर, यहाँ लाइव वीडियो देख पा रहे हैं सर, ये लाइव जी सर, ये लाइव वीडियो है ना, अपने आप आया, कुछ नहीं, बस क्लिक कर दिए सर। जैसे ही लाइव वीडियो को आप क्लिक करेंगे एक स्क्रीन आएगा, थोड़ा सा नेटवर्क की स्पीड कम है तो हो रहा है। अब देखिए सर यहाँ पर देखिए लाइव स्ट्रीम में गो लाइव देखिए लिखा हुआ, देख पा रहे हैं सर, गो लाइव है ना यहाँ पर? यस सर। हाँ जी सर, दिख रहा है। हाँ सर, तो हमको गो लाइव करना है, देखिए यहाँ नीचे लिखा होगा गो लाइव। और जैसे ही हमने लाइव किया फिर देखिएगा सर क्या होता है, दो स्क्रीन आए। तो देखिए सर ये हाँ, तो अब देखिए सर ये अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ए वीडियो सोर्स। तो वीडियो सोर्स जो है सर हमारा वेब कैम नहीं है, वीडियो सोर्स हमारा कौन है सर, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है। किसके थ्रू हम भेज रहे हैं यहाँ, OBS को हम लोग क्या बोलते हैं सर, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, लाइव स्ट्रीम बोल रहे थे ना, तो इसको आपने क्लिक कर दिया सर, ये चाबी वाला की वाला क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे सर यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिखता है स्ट्रीम की, देख पा रहे हैं सर ये स्ट्रीम की। जी सर, जी कॉपी कर लीजिए, बगल में कॉपी लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो गया सर, है ना, ये क्लिक करें कॉपी हो गया। बस यहीं पर देखिए सर ये फेसबुक अभी यहाँ पर जो स्क्रीन दिख रहा है, अभी बोल रहा है कनेक्ट स्ट्रीम सॉफ्टवेयर टू गो लाइव। अभी हमने यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, यहीं पे वो चीज दिखेगी जो हम कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए सर हमने अभी क्या किया, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को लिया और की में जाके कॉपी कर लिया, बस इतना ही काम यहाँ पे। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने सॉफ्टवेयर में, OBS में आ जाना है सर। और OBS में देखिए सर सबसे पहला ऑप्शन राइट हैंड साइड बॉटम पे देखिएगा सर, स्टार्ट स्ट्रीमिंग है, देख रहे हैं सर? जी। और नीचे सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग में जाना है, सेकंड वाला भी सेटिंग्स में करना है, कुछ सेटिंग करना है हमको, कनेक्ट करना है। तो सेटिंग को क्लिक किया सर हमने, तो जैसे ही सेटिंग क्लिक करे देखिए ये सब ऑप्शन आ जाते हैं सर। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है स्ट्रीम पे जाइएगा। अब देखिए सर सर्विस, तो अभी हम कौन सा सर्विस यूज कर रहे हैं सर, फेसबुक कर रहे हैं, तो फेसबुक यहाँ से कर लिया सर बस। और जो की आपने कॉपी किया था यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, की को पेस्ट कर दिया, दैट्स ऑल, बस ओके कर दिए सर, बस इतना ही काम था। तो अब क्या हुआ ऐसा करने से कि हमारा ये वाला OBS जो है कनेक्ट हो गया किसके साथ, किसके साथ सर, फेसबुक के साथ। तो सर हमने क्या काम किया, आपको ये लिखा हुआ भी प्रेजेंटेशन में, फिर से बता देते हैं कि हम सबसे पहले फेसबुक में गए, अपने लॉगिन किया,
और वहां से गो लाइव किया। गो लाइव में 2 ऑप्शन आ रहा था, यूजिंग वेबकैम या यूजिंग स्ट्रीमिंग। तो हमने स्ट्रीमिंग वाला को क्लिक किया और की को कॉपी किया, बस कॉपी करके लाके यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। कहाँ से पेस्ट किया है? सेटिंग पे जाकर के। सेटिंग पे गए, सेटिंग पे गए थे, यहाँ से फेसबुक लिया और यहाँ पर की को कॉपी कर दिया, दैट्स ऑल। ये कनेक्ट हो गया उसके साथ। जब ये अब कनेक्ट हो गया फेसबुक के साथ, तो यहाँ से अब हमको क्या करना है सर? स्टार्ट स्ट्रीमिंग। जैसे ही स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे, यहाँ की सारी चीजें जाने लगेंगी। कहाँ पर सर? कहाँ जाने लगेंगी बताइए? फेसबुक पर। सर यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दिया। अब ये कनेक्ट कर रहा है फेसबुक के साथ, अब कनेक्ट हो गया। अब देखिए क्या लिख करके आ गया सर, यहाँ पर गौर करिए, स्टॉप स्ट्रीमिंग। हाँ, तो जब हमको बंद करना होगा हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है सर। अब ये यहाँ से जो भी चीज हो रहा है, यहाँ जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें एज इट इज जा रही हैं कहाँ पे? फेसबुक पे। तो ये थोड़ा सा हम लोग, अब मान लीजिए कि हम यहाँ वर्क क्रिप्टोग्राफी, ये भी जा रहा होगा, ये भी जा रहा, जो भी आप कर रहे होंगे जा रहा होगा। तो चलिए फेसबुक पे जाके देखते हैं जा भाई रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा फेसबुक जहाँ पर था वहां पर पहले जाइए, देखिए सर आ रहा है यहाँ पर कि नहीं लाइव? देखिए जी सर आ रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं, कह रहे हैं तो सारी चीजें है ना लाइव आ रहा है सर। अभी मैंने देखिए चेंज किया था पीपीटी अपना, तो वो भी दिख रहा है आपको। जो भी आप यहाँ ओबीएस में करेंगे वो सारी चीजें यहाँ आएंगी। समझने के लिए मान लीजिए हम प्रणाम करते हैं, एक गेस्चर बना रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भी, तो देखिएगा कि प्रणाम का भी गेस्चर आपको वहां पर आएगा, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ वो लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए अभी ये लाइव 1-2 सेकंड का 8 सेकंड का लैग होता है थोड़ा सा, बस। तो देखिएगा अभी हमने प्रणाम का सिंबल बनाया, देखिए सर वो प्रणाम भी आया। जी सर आ गया, आ रहा है आ गया सर। मतलब जो एक्टिविटी आप लाइव करेंगे वो लाइव आएगा सर। यस सर, ठीक है। अच्छा, अब इसे करने के बाद होता क्या है, ये मेरे जितने भी दोस्त हैं या फेसबुक में हमारे साथी सब इसको देख रहे होते हैं, तो हमको अच्छा है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद तुरंत इसको क्या करना है सर बताइए? स्टॉप कर दें। देखिए सर यहाँ पर जब ये चल रहा है तो नीचे आइकन में देखिएगा, गौर कीजिएगा सर, ये जो ओबीएस का आइकन उसके ऊपर लाल बटन एक बना हुआ है, गौर करें सर। ये लाल बटन का मतलब है कि ये ऑन है। तो हमको अब स्टॉप स्ट्रीमिंग करेंगे, इसी पे स्टॉप कर दिया। जैसे ही हमने स्टॉप किया तो अब देखिए सर ये स्टॉप हो गया, अब फेसबुक पे नहीं जा रहा है। और यहाँ पर से भी देखिए इस आइकन से भी, यानी ये रेड वाला तब गौर कर रहे हैं जी। यस सर। अब हम अगर फेसबुक पे जाके देखें तो वहां पे आपको हमारी अभी ये सब चीजें नहीं दिखेंगी फेसबुक पे जाकर के। तो देखते हैं सर फेसबुक बंद हो गया, वहां पर देखिए सर फेसबुक में क्या हो गया, देखिए बंद हो गया सर, गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं। यस सर। तो इतना ही आसान है, कोई मुश्किल काम ये नहीं है। क्या बोलेगा, ठीक है सर ये बता दिया आपने, अब दूसरा वो भी तो बता दीजिए कि यूट्यूब में कैसे करते हैं, क्यों? यस सर, यस सर। बिल्कुल। ये सब देखिए आप लोग सब टीचर हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, ये सब करने होने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन जानना चाहिए कि कैसे होता है ना। तो देखिए सर 2 मिनट का काम है, उसके लिए भी सर जरूरी है कि आपका यूट्यूब में अपना अकाउंट होना चाहिए, है ना। तो हम मेरे पास यूट्यूब में अपना अकाउंट है, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे ना वहां से। जब अपना अकाउंट नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि जिसका नहीं है 2 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं सर। तो चलिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा उसके लिए यूट्यूब में। तो हम यूट्यूब में आ जाते हैं सर अपना। नीचे है सर, नीचे है सर। जी जी सर, नीचे यूट्यूब का उस आइकन सिंबल था सर। अच्छा कोई बात नहीं है, होगा तो यहाँ भी आ जाएगा, कर देते हैं, देख लेते हैं। 1 मिनट लगे सर। तो देखिए सर ये 9 ऐप्स जो आते हैं ना, ऐप्स, इसमें भी यूट्यूब बना रहता है, देखा ना सर यूट्यूब यहाँ पे। जी जी, यहीं से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, गूगल से ले लीजिए, कहीं से ले, कोई इशू नहीं है। तो सर ये यूट्यूब चैनल है, देख रहे हैं सर, ये हमारा आसिम जफर देखिए यहाँ लिखा हुआ, देख पा रहे हैं सर, आसिम जफर देख रहे हैं, जी सर। अब देखिए सर यहाँ पर राइट हैंड साइड अपर में देखिएगा ये प्लस साइन एक वीडियो कैमरा बना हुआ है, गौर कर रहे हैं सर? यस सर, यस सर। जी बस इसी को क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे 2-3 ऑप्शन आएंगे, तो हमको किस में जाना है खुद आप बोल दीजिएगा सर। गो लाइव, कहाँ जाना है सर? गो लाइव, गो लाइव, गो लाइव। गो लाइव को क्लिक कर दीजिए सर। जैसे ही गो लाइव क्लिक करेंगे देखिए ये चीजें आ गई। देखिए ये वाला जो यहाँ पर स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं, जो बफरिंग का साइन दिखा रहा है, यहीं पर दिखेगा लाइव जो भी इवेंट हम करेंगे, ठीक है सर। यहाँ पर अभी जो कनेक्ट हमने किया है, अभी देखिए सर क्या आता है, थोड़ा सा लोड हो रहा है सर। देखिए सारे इन्फॉर्मेशन लोड हो गए सर। तो अब देखिए सर यहाँ पर स्क्रीन की फिर दिख रहा सर, देखिए तो है ना लिखा हुआ सर स्क्रीन की डिफॉल्ट। जी जी दिख रहा सर, ये नहीं देखिए आप यहीं से लोग कॉपी कर लें, कुछ नहीं करना है सर। यहाँ पर कॉपी दबा दीजिए, हो क्लिक। यहाँ देखिए सक्सेसफुली कॉपीड लिखा हुआ आगे नीचे, बस इसको सर कॉपी को क्लिक कर देना, बस इतना ही काम करना है ना। इतना करने के बाद आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ सर आसिम जफर लाइव स्ट्रीम
जो भी है सबसे चार्ज लिखी हुई आएंगे, है ना। अच्छा सर, हमने कॉपी जी कर सर। लिया, कॉपी करने के बाद हमको कहाँ जाना चाहिए सर? ओबीएस में जाना चाहिए, ठीक है। ओबीएस में कहाँ जाना चाहिए सर बताइए? सेटिंग में। हाँ, सेटिंग सर नीचे देखिए, यहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे देखिएगा सेटिंग्स। तो जैसे सेटिंग किया, हमको दूसरा ऑप्शन लेना है, स्ट्रीम में जाना था सर। अब सर किस कौन सा यूज कर रहे हैं? फेसबुक नहीं कर रहे हैं सर, यूट्यूब यूट्यूब के बाद जो है सर हमको क्या करना है? यूज स्ट्रीम की, और यहाँ पर सर हमको जो अभी की कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस सर इतना ही काम है, पेस्ट करके ओके कर दीजिए, खत्म हो गया, है ना। ये हो गया सर। अब जब इतना हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा सर? स्टार्ट कनेक्ट हो गया सर आपका ओबीएस स्क्रीनिंग। हाँ, आपका ओबीएस कनेक्ट हो गया यूट्यूब से। अब यहाँ जो चीजें होंगी यूट्यूब पे जाएंगे, स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दी। जैसे ही स्टार्ट हमने कर दिया, अब ये चीजें कनेक्ट हो रही। देखिए सर क्या लिख करके आ गया, अब यहाँ पर अपने आप टॉगल क्या हो गया? स्टॉप हो गया सर। और यहाँ देखिए ग्रीन कलर का बटन भी आ गया, आपका स्ट्रीमिंग चल रहा है, देख पा रहे हैं सर यहाँ? यस सर, यस सर। और जी ये सर। जो ओबीएस वाला आइकन है नीचे देखिएगा बॉटम पे, इसके ऊपर एक रेड बटन भी आ गया। इसका मतलब है आपकी रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग ऑन है, ठीक है सर। एक्टिव चल रही है जी। अच्छा, अब आपको स्ट्रीमिंग देखना है तो हमको जाना पड़ेगा अपने यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल देखिए हमारा यहाँ पर था। तो अब देखिए सर यहाँ आ रहा, बफरिंग कर रहा है, तो अब 1-2 सेकंड का डिले होता है, अब आ जाएगा सर, ठीक। नेट स्लो है। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंडिंग। हाँ आ गया सर, बिल्कुल सर आएगा। और उसके बाद आप जो भी कर रहे होंगे या जो भी बोल रहे होंगे, ये सारी बातें सर आप तो लाइव हो रही होंगी, ठीक है सर। ओके सर। जो भी आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये सारी चीजें लाइव हो रही है। अच्छा, यूट्यूब में क्या होता है सर कि यूट्यूब में ये चीजें रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, आगे भविष्य में पड़ी रहती हैं वहीं पर भी। तो हम बहुत ज्यादा इसको नहीं करेंगे लंबा, है ना। आपको दिखाने के लिए मैंने कर दिया, है ना। आपको जस्ट दिखाने के लिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लीजिए इस बार हम सैल्यूट करते हैं सर, तो सैल्यूट का साइन मैंने बनाया, देखिएगा सर। अब सैल्यूट का साइन जब मैंने बनाया तो अभी दिखेगा सर आपको, यहाँ सैल्यूट का साइन दिखेगा, दिख रहा सर? यस सर, दिख गया। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते थे कि ये होता है सर लाइव। यस सर, दिख रहा है। हो रहा है सर। जी सर जी। तो बंद करें सर इसको, सबसे पहले काम बंद करवाइए सर, बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल सर। जी सर जी सर। यस सर। बंद यहाँ से कर सकते Yes, sir, हैं, yes. स्ट्रीम देखें सर, एंड स्ट्रीम यहाँ से, यस सर, राइट सर। और नहीं तो स्ट्रीम देखिए अभी सर यूट्यूब है सर, ओबीएस में देखिए यहाँ रेड बना हुआ बटन बॉटम पे सर, यहाँ पर गए यस और इसको कर दिया स्टॉप स्ट्रीमिंग, देख रहे हैं सर ये? यस सर। यस सर। जी सर। इसको स्टॉप कर दीजिए, तो अब यहाँ से आपका कनेक्शन वहाँ खत्म हो गया सर। मेरी बात समझ गए सर आप? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? जी नहीं सर, सर। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही आसान है सर। तो आज का काम तो इतना था सर कि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करना सीख लिया अपना डिफरेंट इन्वायरमेंट में, है ना। चाहे वेब कैम के इन्वायरमेंट में कर लीजिए, चाहे पीडीएफ में कर लीजिए, है ना। ये पीडीएफ भी है सर, यहाँ पर देख रहे हैं, यस ये सर। जो पीडीएफ आ रहा था। तो यहाँ पर आप पीडीएफ से जो भी बात बोलना चाहते हैं आप बोलते रहिए सर यहाँ पे, है ना। ये जो भी पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ाते रहिए, यहाँ से वो चीजें आती रहेंगी। तो से फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे हैं स्ट्रीमिंग लाइव टू फेसबुक, तो यही चीज यहाँ भी दिख रहा होगा सर, स्ट्रीमिंग लाइव टू फेसबुक। तो अपना पढ़ाते रहिए, रिकॉर्ड करते रहिए। पीपीटी वेब कैम में जाना है तो पीपीटी वेब कैम में आ जाइए सर। सो दैट इज अप टू यू कि आप इस एनवायरनमेंट में और क्या सेटिंग कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एक सीन से दूसरे सीन में भी आप स्विच कर सकते हैं सर, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है सर। यस सर। जी सर। बिल्कुल चलिए, अब सर मैं एक एक करके, अगर आप लोग सवाल पूछेंगे, आपके मन में कोई सवाल हो तो एक एक करके मुझसे पूछिएगा, हम आपका जवाब देंगे। सर मैं अजय और एक क्वेश्चन है बोलिए। कि यूट्यूब लाइव करने के लिए क्या सब्सक्राइबर लिमिट भी होती है? सब्सक्राइबर लिमिट नहीं है सर इसमें। इसमें मेन आपका चैनल होना चाहिए, यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। अब यूट्यूब चैनल में जिन आप होता क्या है कि हम वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अभी जहाँ पर लिख कर रहा था ना आसिम जफर लाइव, वहाँ एक लिंक आता है, तो वो लिंक हम जितने लोगों को दे देंगे उस लिंक के थ्रू यूट्यूब को सब लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके ठीक है। सर जो लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्ड सेशन जो होगा उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं? हाँ, वो रिकॉर्ड सेशन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, यूट्यूब का हिस्सा बन जाती है, वो फाइल वीडियो पड़ी रहेगी। लेकिन बाद में अगर वो डिलीट करना चाहते हैं तो वो आपके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर पड़ी, वहां से डिलीट कर दीजिए, है ना। ओके सर। जी सर जी। एनी अदर क्वेश्चन, आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछिए सर। हाँ जी सर। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, कोई भी लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड किया, तो वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, या वो फिर मतलब डायरेक्ट यहीं से हम डाल सकते हैं? देखिए मैडम, फाइल सबसे ऊपर में देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे फाइल है, जहाँ एडिट वीडियो ऐसा आ रहा है ना, ये पहला सबसे पहला ऑप्शन है शो रिकॉर्डिंग। शो रिकॉर्डिंग करिएगा, जितने भी आप रिकॉर्ड करते हैं सब यहीं पे रहते हैं, टाइम और डेट के साथ रहते हैं। तो आज देखिए जो हमने रिकॉर्ड किया था 12 तारीख को, है ना, 11:51 पे, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको आप क्लिक करके देख लीजिए, ये फाइल यहाँ पर दिख रही है आपको, ठीक है।
जी सर। तो यहाँ से देख सकते हैं। सर विंडोज तो 7 हमें के लिए हमें जैसे कहीं अपलोड करना है इसे, तो फिर यहाँ से कैसे अपलोड करेंगे इसे? ये तो एक वीडियो फाइल है मैम, ये जो है ना जस्ट लाइक वीडियो फाइल है, तो इसको आप यहाँ से जहाँ भी कॉपी करके ले जाना चाहते हैं कॉपी करके ले जाइए। ये तो फाइल है, जस्ट लाइक फाइल, कॉपी पेस्ट करके जहाँ भी ले जाना चाहते, जिसको देना चाहते हैं ये है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये विंडो के लिए आप लिखिएगा ना, यहाँ विंडो पे जाके सर लिखना पड़ेगा आपको, जैसे कि विंडोज 7 चाहिए ना, तो यहाँ लिखिए ना कि OBS फॉर बोला तो था विंडोज क्या 7.0 है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा। देख रहे हैं सर, यहाँ तो क्या इंस्टॉलर फॉर विंडोज आप तो रहा सर विंडोज 7 OBS सब, यहाँ से आप ले लीजिए। देख रहे हैं सर, बहुत सारे आप आते हैं सॉफ्टवेयर है ना, तो यहाँ से जिसमें मिल जाए जो बिल चाहिए वो ले लो, वहां से आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए सर आप बताइए, कोई और सवाल आपका हो? हाँ आ रहा है URL and stream key are missing. Open settings to enter URL and stream key in the stream tab. So इसमें क्या करूँ सर? मैं हम आपको थोड़ी आपकी वॉइस से मैंने ब्रेकिंग अप, तो मैं समझ पाया सवाल, दोबारा हाँ जी सर। इसमें ऐसा मैंने 1-2 सेकंड का रिकॉर्डिंग करने की तो फिर OBS पर ऐसा आ रहा है, इंटरफेस पर आ रहा है कि stream key are missing. Open settings to enter stream key. तो आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ मैम। स्ट्रीम की मिसिंग का मतलब है कि आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है ना, कनेक्ट नहीं हुआ वो, है ना। कनेक्ट जब होगा तो हमने आपको बताया था, यहाँ ग्रीन बटन भी दिखेगा, दूसरा इस पे रेड बटन दिखेगा, है ना। वो कनेक्ट जब नहीं होता है तो कनेक्ट नहीं हुआ आपका वो किसी वजह से। सर तो मैंने सेटिंग्स तो खोल रखा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि उसमें मैं मतलब सिलेक्ट क्या करूं। देखिए मैं सेटिंग कर रहा हूं, किस पे सेटिंग कर रही है, किस पे कर रही है, विंडो यूट्यूब पे कि फेसबुक, किस पे कर रही है बताइए। नहीं OBS का जो इंटरफेस है ना, उसी पर मैं स्ट्रीम पर गई हूँ ना, OBS के स्ट्रीम पे गए, यहीं पे कर रही है ना स्ट्रीम पे। हाँ, यहाँ से सर्विस सिलेक्ट करना है आपको, से फॉर द एग्जांपल यूट्यूब लेना है, यूट्यूब ले लिया आपने, है ना। ठीक है, यूट्यूब लेने के बाद आपको जो भी RNT ये ले लिया, उसके बाद देखिए यूज स्ट्रीम की यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर ये की ये नीचे वाला बटन क्लिक करना है, यूज स्ट्रीम। ओके सर, ओके। हेलो जी सर OBS में बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं क्या? हेलो सर। sir, one moment, I'm just coming back. गूगल मीट पे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप सब्सक्राइब करें, कमेंट। थैंक यू सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर जी, मैंने 2 मिनट है। हेलो, आ ही नहीं रही। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। हाँ फरीद भाई, आपका नंबर पहले तो दूसरा है कोई, है ना, मेरे पास दूसरा वाला नंबर है आपका।
अच्छा, इसको भी स्टोर कर लेना है ना। दूसरा बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा कर दिया माशाल्लाह। इसमें सिर्फ मेरा नाम डबल लिखता हूँ नीचे, डबल लेकर। हाँ हाँ, बाकी बिल्कुल सही है। ठीक है, आज हो जाएगा सर, आज निकल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया, सलाम। ऑर्डर आ जाए, ठीक है, अभी हम क्लास में अंदर सारा चीज फायदा बहुत महंगा नाम अभी बोल रहे हैं, छोड़ के दे रहे हैं। हाँ बस अभी बस हाँ कर दिया ना, नहीं धूम में कर दिया ना, हो गया ना। हाँ हो गया, 2-3 मिनट कुछ था, गंदगी नहीं देखी, मैं कह रहा मैंने वो चारों बता रहा पैटर्न धो दिए। हाँ वही चीज है। ओके सर, थैंक यू। कैन यू लिसन मी प्लीज कंफर्म? यस सर। सवाल है आपका, सर डिफरेंट जो इसमें सीन्स होते हैं जिसको ऐड हमें करना होता है, तो सर इस सीन से क्या मतलब है, कैसे मतलब सीन से मैं समझ नहीं पा रहा। मैं तो एक सीन ऐड करके इसको देखा, अगर डिफरेंट सीन्स होगा तो उसका क्या फायदा होता है? देखिए सर, उसमें होता क्या है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें डिफरेंट सीन है। मान लीजिए कि सर हमने यहाँ शुरू किया अपनी रिकॉर्डिंग, ठीक है सर, डियर स्टूडेंट, समझिए, देख रहे सर आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं? कंफर्म कीजिए। यस सर, दिख रहा है सर। यस सर, यस सर। डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू दिस टॉपिक एंड दैट टॉपिक। थोड़ी देर के बाद हमको लगता है कि हमको यहाँ आ जाना चाहिए, है ना। करते करते हमने सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए पहले तो मेरा नाम नहीं आ रहा था, गौर कर रहे हैं सर, हमने यहाँ से शुरू किया था, अब ये कर दिया, जरा अच्छा लगने लगा। अब हम मान लीजिए कि आ रहे हैं कि नाउ टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू हाउ टू लाइव स्ट्रीम यूजिंग क्या, फेसबुक। तो उसके बाद देखिए सर हम यहाँ पर आ गए, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना सर कि यहाँ पर अब आ गया। तो देखिए आपकी आवाज सुनाई दे रही है और ये भी हो रहा है, हम ये एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं और ये चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही हैं। तो ये कब होगा, जब यहाँ से स्विच कर रहे हैं हम, तभी तो। पहला हमने यहाँ था, दूसरे में यहाँ आ गए, तीसरे में यहाँ आ गए। उसके बाद हमको लगता है नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू हाउ टू वर्क विथ क्रिप्टोग्राफी। तो देखिए सर हम क्रिप्टोग्राफी में भी आ गए। अब यहाँ पर हम अपने जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर बात समझ में आ रही है, समझ के नहीं समझ में आ रही? समझ में आ गया सर। तो ये है कि आपको जरूरत के मुताबिक, अच्छा आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम एक ही सीन में शुरू करेंगे और वहीं जाके खत्म कर देंगे, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं हम बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर देंगे पूरा, ऐसे कर लीजिए। लगता है इसी सीन में पूरी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, कर लीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मोनोटोनस ना हो जाए आपका लेक्चर, लड़के आपको कभी देखें, सुने, कभी पीपीटी देखें, क्योंकि रिकॉर्डिंग का एक नियम भी है कि ऑल द टाइम है ना, कभी उसको पीपीटी लिखना चाहिए, कभी पीडीएफ लिखना चाहिए, ताकि उसका ध्यान वहां पर ठीक से रहे, केंद्रित। चलिए सर, और कोई सवाल हो तो पूछिए। सर हम अपने पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं क्या? अभी तो सर, अभी तो हमने पहला काम क्या क्या बताया था, इसके 2 पार्ट होते हैं। अभी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग किया है ना। अब रही बात बैकग्राउंड चेंज करने की, तो वो कल एडिटिंग कहलाता है सर। वो तो कल हम लोग करेंगे हाउ टू मेक योर प्रेजेंटेशन और वीडियो मोर प्रेजेंटेबल, मोर ब्यूटीफुल, उसको हम लोग एडिटिंग कहते हैं। अभी जैसे देखिए सर हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब उसमें रिकॉर्ड का टाइटल वगैरह देना है कि, है ना, हम लेक्चर बाई यासिम जफर ऑन दिस टॉपिक एंड दैट टॉपिक। तो ये सब कैसे होगा, ये सब तो एडिटिंग कहलाता है। ये कल हम लोग देखेंगे सर कि एडिटिंग कैसे होता है। उसके लिए सर हम लोग क्या करते हैं कि आपके इस पे जाते हैं सर, क्रिएट पे गए, टॉपिक बनाया और एडिटिंग कहते हैं, एडिटिंग यूजिंग VSDC एक सॉफ्टवेयर का नाम है सर, है ना, वीडियो एडिटिंग यूजिंग VSDC। तो हमने ये कर दिया सर, प्लस पे गए, मटेरियल पे गए और यहाँ लिख दिया वीडियो। कल बात करेंगे सर इस पर, प्रेजेंटेशन अभी लोड कर दे रहे हैं सर। वीडियो एडिटिंग यूजिंग VSDC टूल या सॉफ्टवेयर, जो भी समझिए, है ना। तो हम लोग वीडियो एडिटिंग इतना करेंगे। जा करके सर यहाँ पर मैं देखता हूँ, वीडियो एडिटिंग का आपको आज ही लोड कर देते हैं ताकि आपको कल आसानी से मिल जाए। तो देखिए सर ये वीडियो एडिटिंग आ गया सर, यहाँ पर हम गए वीडियो एडिटिंग और पोस्ट कर दिया। तो आपके देखिए सर, जिन लोगों ने हमारा गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है, वहां पर देखिए ये प्रेजेंटेशन आ गया सर, वीडियो एडिटिंग यूजिंग VSDC। कल हम लोग इस पर बात करेंगे सर। ये टूल है सर
और ये पूरा प्रेजेंटेशन है जो हम लोग कल बात करेंगे कि कैसे अपने सॉफ्टवेयर को आप क्या करते हैं सर, एडिट करते हैं ना, वीडियो एडिटिंग यूजिंग DSBC एडिटर। ये पूरी चीजें सर लोड कर दी हम लोग। कल इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि अपने फाइल को आप कैसे एडिट करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है सर? तो उसके लिए मैं आपको अभी थोड़ा सा एक सर टाइम देता हूँ। हम लोग चले गए अपने रिकॉर्डिंग पे आ जाइए, कहाँ है? देखिए जैसे सर हमने एक रिकॉर्ड किया सर, मान लीजिए आपको हम दिखा रहे हैं, आवाज आपको सुनाई नहीं देगी सर, आवाज क्योंकि हम माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं बात करने के लिए ना, एक ही माइक्रोफोन है। तो देखिएगा सर, ये हम दिखा रहे हैं आपको जो हमने रिकॉर्ड किया। ये सर एक रिकॉर्डिंग है जो हमने OBS में क्या किया, अपने दोस्त के साथ आप बैठे हुए हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल रिकॉर्डिंग है। वीडियो रिकॉर्ड करा, हम चाहते हैं कि आप जो स्क्रीन नहीं आएगा, वीडियो जो कैमरा का आउटपुट वही रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना? देख लिया सर आपने यहाँ पर, है ना? हम अपने दोस्त के साथ क्या करते हैं, आपने क्या किया सर, एडिट कर दिया। एडिट अब यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग सेशन यूजिंग इतना, ये उसमें नहीं था सर पहले वाले में। फिर देखिए सर हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या किया, उस बातचीत को म्यूट कर दिया और बैकग्राउंड में एक हल्का सा म्यूजिक ट्रैक चला दिया हमने, तो यहाँ पर एक म्यूजिक सुनाई देगी सर। अभी हम सुना के दिखा देंगे आपको सर म्यूजिक, उसके लिए मेरा माइक्रोफोन बंद करना पड़ेगा। अच्छा म्यूजिक हो गया, उसके बाद देखिए सर यहाँ पर अब क्या आ रहा, आसिम जफर लिखा हुआ आ रहा सर, गौर कर रहे होंगे आप यहाँ पर, देखिए सर, देखिए सर यहाँ आसिम जफर लिखा हुआ आ रहा। फिर थोड़ी देर के बाद सर आसिम जफर गायब हो गया, अब देखिए सर नहीं लिखा हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा सर यहाँ पर ये थैंक यू वाला बैनर आ गया, थैंक यू डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन दिस एंड दैट। गौर कर रहे हैं सर? जी सर। तो इसी को हम लोग एडिटिंग बोलते हैं सर। एडिटिंग का मतलब कुछ चीजें ऐड करना, कुछ उसमें से हटाना, है ना? जो खराब चीजें हो गई उसको काट दीजिए, अच्छा चीजों को लगा दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड कर दिया, कुछ और चीजें कर दी, सो दैट योर वीडियो बिकम्स मोर प्रेजेंटेबल एंड आफ्टर मेकिंग इट मोर प्रेजेंटेबल यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू योर स्टूडेंट्स और जो भी आपका ऑडियंस है उसको आप बांट सकते हैं। तो ये तरीका, ये कल कैसे करते हैं ये सब चीजें, ये सब हम लोग सर अभी देखेंगे कल कि कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है सर? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। 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 थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। कमल पे थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक घंटे बाद थैंक यू धन्यवाद सर। निकलना आशीष जायसवाल आए सर। हाँ जायसवाल मेरी क्लास चल रही है ना। थैंक यू सर। कल सो गए चल उन्हें तो भी बिस्तर नीचे कर दिया। हाँ चिल्ला रहा नीचे था। हाँ तू वाले सो रहा है। अरे कौन